آمین۔ دوستو خدا ان کا شکر اس کی تعریف ہو، اور آئیے آج کی مقرر کردہ تلاوت کو سننے کے لیے اپنے اذہان کو تیار کریں، اور آج ہم خدا کی خادمہ مسز انیتا سلمان کے وسیلے سے آج کے زندہ پاک کلام کی تلاوت سنیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم خدا ان کے زندہ کلام کی آواز کو باقاعدہ طور پر اس کی تفسیر اور تشریح سنیں گے۔ اور میں دعوت دوں گا مسز انیتا سلمان سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آج کی تلاوت آپ تک پہنچائیں۔ آج کی تلاوت ہمارے یسوع مسیح کا مکاشفہ، یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا یسوع مسیح کا مکاشفہ، اس کا 2 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک۔ اس کا 2 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک۔ افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے، جو اپنے داہنے ہاتھ میں 7 ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دان میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں۔ مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ پس خیال کر کے کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکیلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے ہیں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ پریز دی لارڈ۔ اور دوستو آئیے اپنے سروں کو چند لمحوں کے لیے جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا عظیم، قادر مطلق، مہربان، آسمان و زمین کے خدا، تو جو حکمت اور دانائی کا سرچشمہ ہے، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں تیرے فضل اور تیرے رحم کے لیے، تیری بزرگی اور تیری حکمت اور دانائی کے لیے، اور خداوند اس بات کے لیے کہ تو نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا ہے۔ اور خداوند دیکھ، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ آج کے زندہ پاک کلام کو ہمارے دلوں پر نقش کر، اور خداوند میں تیرا ادنا خادم ہوتے ہوئے پیارے باپ آسمانی تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو مجھے حکمت کے الفاظ دے، تاکہ تیرے کلام کو لائق طور پر مناسب انداز سے تیرے لوگوں تک پہنچاؤں۔ خداوند یسوع کے نام میں آمین، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند کا فضل اور اطمینان آپ سب لوگوں کے لیے مانگتا ہوں، اور خداوند سے التجا کرتا ہوں کہ خداوند کا جلیل اور بزرگ نام آپ کی زندگی میں ہمیشہ پروان چلتا رہے۔ آج جو پہلا پیغام ہے وہ افسس کی کلیسیا کے نام تحریر کیا گیا، یہ پیغام جو کہ خداوند یسوع المسیح نے اپنے بندے یوحنا عارف کی معرفت افسس کی کلیسیا کو پہنچایا۔ اور یاد رکھیے کہ آج ہم اسی حوالے پر تھوڑی دیر کے لیے غور و خوض کریں گے، اور آپ ضرور اپنی نوٹ بکس جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھیے، کاپی پینسل جو ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ جب آپ کو خدا کے کلام کے حوالے سے بیان کیا جائے تو آپ اس کو سیکھیں اور اس پر غور کر سکیں۔ اور یہ ایک اچھا موقع ہوگا ہم سبوں کے لیے۔ اور آج جب ہم افسس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو افسس کا جو شہر یا جو افسس کی کلیسیا ہے، اور اگر ہم لفظ افسس دیکھیں تو افسس کے لغوی معنی کیا ہے؟ افسس کا مطلب ہے محبوب یا دلدار، ڈیئر ون۔ اور اگر ہم کلیسیائی اعتبار سے اس افسس کی کلیسیا کو دیکھیں جو کہ سن 34 سے لے کر اور سن 96 تک
यानी सन 34 मसीही से लेकर सन 96 मसीही तक आबाद रही, खुदावन की खिदमत में हमतन मसरूफ रही। और ये खत जो है, ये पैगाम जो है कलीसिया यानी इफसस की कलीसिया को दिया गया, और उसकी इस सारी खिदमत को ये एक वाहिद ऐसी कलीसिया है जो कि खुदावन यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी की चश्मदीद गवाह थी, और जिसने खुदावन यीशु मसीह को ज़मीन पर काम करते हुए, जिसने खुदावन यीशु मसीह को ज़मीन पर मौजूद रहते हुए और मौजज़ात करते हुए देखा था। और आज जिस वक्त हम इफसस शहर के बारे में बात करें और इसके मोहल्ले वकूअ के हवाले से, जो मोहल्ले वकूअ की जब हम बात करते हैं तो इफसस का जो शहर है ये इंतहाई अहमियत का हामिल शहर गर्दाना गया उस वक्त की मौजूदा दुनिया में। लेकिन आज अगर हम तुर्की के मुल्क को देखें तो उसके सूबे इज़मिर में अब सिर्फ इसके खंडरात ही बाकी हैं। और ये वजह क्यों है और ये आगे चलकर हम देखेंगे। लेकिन इफसस शहर का मोहल्ले वकूअ जो है वो हमें बयान करता है कि ये सूबा आसिया का दारुल खिलाफा और एशियाई कूचक के मगरबी साहिल पर वाक़ था, और मगरबी एशियाई जो तजारती रास्ता था उसमें इसका एक अहम जो है वो हिस्सा गर्दाना जाता था, क्योंकि ये एक बंदरगाह थी और ये वो इलाका था जहां पर अर्थमस देवी या डियाना देवी जिसको हम कहते हैं उसका भी मंदिर मौजूद था। और तारीख इस बात की शाहिद है कि इस मंदिर की वजह से मसीहियों को वहां पर बहुत सी मुश्किलात दरपेश थीं और बहुत सारा दुख जो है वो मसीहियों ने बर्दाश्त किया। लेकिन जब मुकद्दस पौलुस रसूल ने सन 52 में उस इफसस शहर में आकर खिदमत का आगाज किया, तो मेरे भाई मेरी बहन याद रखिए कि इफसस शहर में पौलुस की खिदमत इतनी जानदार और फ्रूटफुल खिदमत थी कि उसके वसीले से अर्थमस देवी की पूजा जो है वो इंतहाई कम सतह पर चली गई और आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली गई। और इस तरह से अर्थमस देवी की प्रस्तिश जो है वो पौलुस की खिदमत के वसीले से वहां पर जवाल पजीर होती गई। और बिलाखिर सन 262 मसीही में गौथी कौम ने जब इफसस शहर पर चढ़ाई की तो उन्होंने अर्थमस देवी के इस मंदिर को तहते किया, इसको मस्मार किया और उसको नजर आतिश कर दिया। और ये एक ऐसी अहम बात है जो इसके मोहल्ले वकूअ में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 5वीं सदी मसीही तक ये शहर जो था ये खंडरात में तब्दील हो चुका था और ये शहर बर्बाद हुआ, खत्म हो गया। लेकिन आज भी इसके खंडरात बाकी हैं। और अगर हम दुनिया की तारीख को देखें तो सन 1872 में शुरू होने वाली इफसस की खुदाई जो है उसमें वो जो 1905 तक चली, तो कम से कम ये 3 दहाइयों पर मबनी खुदाई एक ऐसे इफसस शहर को सामने लेकर आई कि जिसके हवाले से 1905 से पहले के मसीही नावाकिफ थे, जिनको पता नहीं था कि इफसस शहर कैसा था, उसका मोहल्ले वकूअ कैसा था, उसके गिर्द गिर्द फसीलें कैसा थीं और वो किस तरह से तामीर किया गया था। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन आज इस बात को याद रखें कि इफसस शहर जो कि एक काफी बड़ा शहर गर्दाना गया और तकरीबन 5 मील पर मबनी उसके गिर्द बहुत बड़ी दीवार थी जो कि 1000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर मुहीत दीवार गर्दानी जाती है। और यही वो शहर है कि जहां पर मुख्तलिफ अदवार में बहुत सारे खुदा के बेशकीमती खादमों ने अपनी खिदमत सरंजाम दी, जिसमें मुकद्दस पौलुस रसूल भी हैं, जिसमें इसके साथ साथ अप्लूस का भी एक बड़ा वाज़ेह नाम है। और इसके साथ साथ जब हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम को देखते हैं तो खुदावन का बुजुर्ग कलाम हमें यह बात बताता है कि इसी कलीसिया में तिमोथियस ने भी अपनी खिदमत सरंजाम दी और इसी कलीसिया में मुकद्दस यूहन्ना जो आरिफ हैं उन्होंने भी अपनी खिदमत जो है वो सरंजाम दी। और इस बात के लिए भी हमें इस चीज से वाकिफ होना चाहिए कि इफसस की कलीसिया जो है ये इंतहाई अहमियत की हामिल कलीसिया है। और दोस्तों जिस वक्त हम खुदावन की इस ताज़ीम को और खुदावन के इस अहम जगह को और इसके इस इलाके को देखते हैं तो इससे हमें अंदाजा होता है कि खुदावन का रूह यहां पर काम करता रहा। लेकिन
افسوس کی بات یہ ہے کہ جس وقت ہم خداوند کے کلام کو دیکھیں تو خداوند کا کلام ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ خداوند کے کلام پر جب اس کلیسیا نے نگاہ نہیں کی تو بالآخر 5ویں صدی میں یہ کلیسیا کھنڈرات کا ڈھیر بن گئی. اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کی ان آیات کی تفسیر کی طرف آتے ہیں تو پھر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ خداوند کا جلیل اور بزرگ کلام ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ جس طرح سے پہلی آیت میں درج کیا گیا کہ افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دانے ہاتھ میں 7 ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے. اور دوستو آج جس وقت ہم خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں تو خداوند کے کلام کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ 7 ستاروں کی جو بات کی گئی یہ انتہائی اہم بات تھی کہ 7 ستاروں کی جو بات کی گئی وہ 7 کلیسیاؤں کے وہ 7 فرشتگان ہیں، وہ 7 خادمین ہیں جو ان 7 کلیسیاؤں کی نگہبانی اور ان کی پاسبانی پر مامور ہیں. اور 7 کا عدد جو کہ کاملیت کا عدد ہے، بیسیکلی یہ 7 کلیسیاؤں کے نام تحریر کیا گیا خط نہیں، یہ 7 کلیسیاؤں ہی کو دیا گیا مکاشفہ نہیں، بلکہ یہ کامل اعتبار سے بخشا گیا وہ مکاشفہ ہے جو نہ صرف ان 7 کلیسیاؤں کے لیے بلکہ دور حاضرہ کی تمام کلیسیاؤں اور عالمگیر کلیسیا کے لیے ہے. اور جس وقت ہم ان 7 ستاروں کو بھید دیکھتے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دانے ہاتھ میں 7 ستارے لیے ہوئے ہیں، تو دوستو 7 ستاروں کا مسیح خداوند کے ہاتھ میں ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ مسیح خداوند کو کلیسیا اور اس کے پاسبانوں پر حاکمیت جو ہے وہ حاصل ہے. اور تمام تر پاسبان، تمام تر خادمین اور اس کے ساتھ ساتھ تمام کلیسیائیں جو ہیں وہ اس کی محافظت میں اور اس کے ہاتھ میں موجود ہیں. اور لکھا ہے سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے. اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں خداوند یسوع مسیح کا پھرنا یہ اس بات کی شہادت ہے میرے بھائی میری بہن کہ خداوند یسوع المسیح جو ہیں وہ ان تمام عالمگیر کلیسیا کے جو بھید ہیں ان کو جانتے اور ان میں سرائیت کرتے ہیں. اور بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسا استثنا کی کتاب کے 23ویں باب کی 14ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر خدا باپ کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ وہ بیابان میں خدا جو ہے وہ اسرائیل کے خیموں میں پھرا کرتا تھا تاکہ وہ تمام تر قوم کے مسائل کو جانے، ان کی ضرورتوں کو جانے اور ان کو پورا کرتا رہے. اور اسی طرح جب ہم خداوند یسوع المسیح کے بابت دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح بھی 7 چراغ دانوں میں جا بجا پھرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آج بھی اپنی کلیسیاؤں میں مصروف ہیں، آج بھی اپنی کلیسیاؤں میں وہ چلتے پھرتے ہیں. کلیسیاؤں کی ضرورت، ان کی آزمائشوں، ان کی فتح مندی، ان کو درپیش تمام تر جو مسائل ہیں اور جو جنگ کا سامنا کلیسیائیں کر رہی ہیں، ہر ایک چیز سے خداوند یسوع المسیح کو واقفیت ہے. اور میرے بھائی میری بہن جب ہم دوسری آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزمایا اور جھوٹا پایا. اور یہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے. اور دوستو یہاں پر خداوند یسوع المسیح جو ہیں وہ افسس کی کلیسیا کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. افسس کی کلیسیا کی تعریف کو میں وہ یہ جملہ ادا کرتے ہیں، اور جس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں. تو تعریف کیا ہے کلیسیا کی؟ تعریف کیا ہے بھائی؟ اور تعریف یہ ہے کہ اس کلیسیا نے خداوند یسوع المسیح کی خدمت کو اس طریقے سے پیش کیا اور خدمت کو اس طریقے سے لے کر چلے کہ انہوں نے
बड़े सब्र और आजमाइश के साथ दुखों में से गुजर कर भी हर हाल में मसीह की खिदमत का जो बीड़ा उन्होंने उठाया था उसको जारी रखा, और खुदावन का रहम उनकी नज़र पर उन पर कायम रहा, और खुदावन का फजल उन पर ठहरा रहा। और खुदावन यीशु मसीह जो हैं उनको ये पैगाम देते हैं, और ये पैगाम की बुनियाद जो उसके काम के हवाले से है, ये खुदावन यीशु मसीह का मुशाहिदा है जो खुदावन ने किया है, और खुदावन उनकी तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर। और तारीफ किस तरह से है कि ये जुमला कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। और दोस्तों, ये जुमला जो मैं तेरे कामों को जानता हूं, खुदावन जो कि हमा वक्त और हमा जा मौजूद हैं और जो तमाम तर भेदों से वाकफियत रखते हैं, वो न सिर्फ उस वक्त इफसस की कलीसिया के भेद को जानते थे, बल्कि वो आज मेरी और आपकी सच्चाइयों से भी वाकिफ है, वो मेरे और आपके किरदार से भी वाकिफ हैं, वो मेरे और आपके भेद से भी वाकिफ हैं, वो आज हमारी कलीसिया से भी वाकिफ हैं, वो तमाम आलमगीर कलीसिया से वाकिफ हैं। और दोस्तों, याद रखिए कि हर जमात की पूरी हालत से बराह रास्त खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो बराह रास्त वाकिफ रहते हैं। और इसी तरह से अगर खुदावंद यीशु मसीह की ये खासियत है, और खुदा का कलाम भी हमें ये बात बयान करता है कि जहां पर खुदावंद ने लोगों की तारीफ की उनके अच्छे कामों पर, क्योंकि वो एक अजली मुनसिफ है, जहां पर वो सिला देना जानता है, जहां पर वो अजर देना जानता है, वहां पर वो तंबीह करना भी जानता है। और मेरे दोस्तों, जहां तारीफ की जरूरत हुई, यीशु ने खुलकर अपने शागिर्दों और कलीसियाओं की तारीफ की, और जहां पर तंबीह करने की जरूरत हुई तो वहां पर खुदावन ने तंबीह भी की। और यहां पर जब खुदावन को जरूरत दरपेश आई कलीसिया की तारीफ करने की, तो कलीसिया की तारीफ उन्होंने इन अल्फाज में की कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और यह भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, और तूने उनको आजमा कर झूठा पाया है। और मेरे दोस्तों, यहां पर यह बड़ी अहम बात है कि यह खुदावंद ने उनकी तारीफ, दूसरी तवारीख की किताब उसके 19वें बाब की 3री आयत को देखें तो वहां पर खुदा बाप जो है वो यहूद सफ्त बादशाह की भी तारीफ करते हुए हमें दिखाई देता है। और जहां पर यह बात लिखी है कि तो भी तुझ में खूबियां हैं, क्योंकि तूने ये सीरतों को मुल्क में से दफा किया और खुदा की तलाश में अपना दिल लगाया है। खुदावन हर उस ईमानदार या खादिम या कलीसिया की तारीफ करता है जो उसका मुस्तहिक है। लेकिन आज हमें सोचने का हमारे लिए मुकाम यह है कि आज हम ये सोचें कि क्या हमारी ज़ात में भी कोई ऐसी बात मौजूद है कि जिससे खुदावन हमारी तारीफ करे, जिससे वो हमें इस बात के लिए मुबारक ठहराए कि हाँ, मैं तुम्हारी ये तारीफ करता हूं कि तुम मेरे काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो। और तारीफ के लिए जो खुदावंद ने बयान किया यहाँ पर जो आम बातें हैं वो क्या है? काम और मुशक्कत में खुदावंद ने उनकी तारीफ की, क्योंकि इफसस की कलीसिया और इफसस की कलीसिया के खादिम जो थे वो हाथ पर हाथ रख कर बैठने वाले लोग नहीं थे, बल्कि वो शब रोज खुदावंद की खिदमत में मसरूफ रहने वाले लोग थे। और सब्र करने और बदों को बर्दाश्त ना करने की जो दूसरी बात यहां पर की गई, तो ये बड़ी ही अहम बात है कि वहां पर ऐसे बहुत सारे लोग भी आ बसे थे, ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद थे जो अपने आप को रसूलों का हम पल्ला करार देते थे, जबकि वो थे नहीं, जबकि उनका दूर दूर भी मसीह की कलीसियाओं से या मसीह की तालीमात से वास्ता नहीं था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी मसीही कलीसियाओं में, आज भी आलमगीर सतह पर ऐसे बहुत सारे नाम नेहाद खादिम और झूठे रसूल उठ खड़े हुए हैं, जिन्होंने मसीह की कलीसिया को, जिन्होंने मसीह के लोगों को, जिन्होंने मसीह के बदन को तार तार किया है। और आज भी अगर हम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो हमें ऐसे बहुत सारे झूठे लोग, झूठे खादिम और झूठे नबी दिखाई देंगे जो बात तो मसीह की खिदमत की करेंगे, जो बात तो मसीह के कलाम की करेंगे, लेकिन असल में वो बातिन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, और इनकी जाबजा मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। और फिर खुदा का कलाम क्या कहता है? और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते
थका नहीं है। और यह भी उनकी एक तारीफ में कहा गया, यीशु मसीह का जुमला है कि तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं है। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप उस मुसीबत का अंदाजा भी नहीं कर सकते कि जिस मुसीबत का सामना इफिसस की कलीसिया को करना पड़ा। और ये वो कलीसिया उस मोहल्ले वकू में, उस माहौल और उस मुआशरे में बसी हुई थी कि जहां पर अर्थमस देवी का मंदिर, जहां पर कसरत के साथ बुत परस्त लोग आबाद थे। और जब बुत परस्त लोगों के दरमियान में खुदा के लोगों को खिदमत का और मुनादी करने का टास्क दिया गया, तो किन तकलीफों में से उनको गुजरना पड़ा, ये तारीख के औराक पलटें और खुद देखें कि इफिसस के मसीहों पर कैसी कैसी आजमाइशें और कैसे कैसे दुख उठाए गए, किस तरह से लोगों को शहीद किया गया, किस तरह से उनको जलते हुए तेल के कड़ाहों में डाला गया, किस तरह से इफिसस के स्टेडियम में जिंदा लोगों को भूखे शेरों के सामने डाला गया। तारीख के औराक में आपको यह सब कुछ दिखाई देगा, किस तरह से खुदा के लोगों को आरों के साथ चीर दिया गया, किस तरह से उनको उल्टी सलीबें दी गई, किस तरह से उनके सर जो हैं वो उनके तन से जुदा हुए। यह सब कुछ तारीख के आईने में हम देख सकते हैं, किस तरह से उन्होंने दुखों और तकलीफों का सामना किया। और मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा का कलाम यह बयान करता है, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं है। और जब वो मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं है, वो शहादतें देते हुए थकी कलीसिया नहीं है, तो खुदावन उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब तारीफ हो और ये खूबसूरती और उनके तमाम तर कलाम के जो अहम हिस्से हैं और उनकी खिदमत के जो अहम हिस्से हैं उनका बयान करने के बाद खुदावन उनको तंबीह के तौर पर भी कुछ बात कहते हैं। और ये निहायत अहम बात है। और खुदावन के कलाम में क्या लिखा है, चौथी आयत, कि मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और मेरे भाई, मेरी बहन, आज हमें इस बात को सोचने की जरूरत है कि शायद आज हम भी किसी ऐसी ही कलीसिया के पासबान या ऐसी ही कलीसिया के रुकन हैं जो देखने को तो बड़ी फलदार है, जो देखने को तो बहुत काम करती हुई नजर आती है, लेकिन हकीकत में आज कहीं हम भी मसीह की मोहब्बत से दूर तो नहीं हो गए। इफिसस के लोग जो थे, जिस मुआशरे में रहते थे, उस मुआशरे में रहते हुए उनकी सोच यहां पर रुक गई थी कि हमें इन बुत परस्त लोगों में सिर्फ और सिर्फ खुदा का काम करना है। इनको बताना है कि मसीही लोग बहुत अच्छे हैं, इनको बताना है कि हमारा यीशु बहुत बुलंद है, इनको बताना है कि हमारा यीशु जिंदा खुदावन है। लेकिन इन सब बातों की मुखालफत में वो असल में अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ रिफाकत रखना भूल गए। वो असल में यीशु से वो कायम मोहब्बत जो उनके आबाओ अजदाद की थी, उस मोहब्बत से वो आहिस्ता आहिस्ता फिर गए। वो रूहानी मोहब्बत जो उनके आबाओ अजदाद के दिलों में यीशु के हवाले से बसी हुई थी, ये दूसरी जो पुष्ट थी, वो दूसरी नस्ल जो है, ये उस मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई। रिवायती तौर पर वो खुदा के घर में आना और खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाने में तो बड़े खुश थे, खुदा की खिदमत में हमतन मसरूफ थे, लेकिन हकीकत में उनके दिल आहिस्ता आहिस्ता खुदावन से दूर होते चले गए। तभी खुदावन ने उनको कहा कि मुझे तुझसे यही शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और मेरे भाई, मेरी बहन, अगर हम मसीह का कलीसिया के साथ रिश्ता देखें तो मसीह का बाइबल मुकद्दस की तालीमात की रोशनी में जो रिश्ता है कलीसिया के साथ, वो एक दुल्हे और दुल्हन का है। और एक बड़ी खूबसूरत बात है कि बीवी चाहे जितनी मर्जी खूबसूरत क्यों ना हो, जितना मर्जी अच्छा खाना क्यों ना बनाती हो, जितना मर्जी घर का काम क्यों ना करती हो, लेकिन खावन के पसंदीदा वो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि वो अपने खावन की इज्जत और उससे मोहब्बत ना रखती हो। और यही हाल इफिसस की कलीसिया का था कि वो लोग जो मसीह की
खिदमत तो कर रहे थे, लेकिन उनके दिल असल में मसीहत से और मसीह की तालीम से दूर हो चुके थे। और यहाँ पर जिस मोहब्बत का जिक्र किया गया वो अगापे मोहब्बत है, यानी आम इंसानी रिश्तों की मोहब्बत से बहुत बुलंद मोहब्बत जो खुदावंद ने इफिसस की कलीसिया के साथ की। और खुदावंद ने उन पर यह गिला भी किया कि मुझे तुझसे यही शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और वो दुनिया के झंझटों में पड़कर, दुनिया के मसाइब में पड़कर अपनी पहली सी मोहब्बत से फिर गए और खुदावंद के हजूरी से दूर चले गए। और यहां पर मुझे खुदा का कलाम जो यिर्मयाह नबी को हासिल हुआ, उसकी एक बड़ी खूबसूरत आयत जो जहनों को झंझोर देने वाली आयत है वो याद आती है। और खुदावंद ने यिर्मयाह से फरमाया, तू जा और यरूशलेम के कान में पुकार कर कह कि खुदावंद यूं फरमाता है, मैं तेरी जवानी की उल्फत और तेरे ब्याह की मोहब्बत को याद करता हूं कि तू बियाबान यानी बंजर जमीन में मेरे पीछे पीछे चली। और यही बात है कि आज भी जब हम खुदावंद खुदावंद कहकर पुकारते तो हैं, लेकिन जब हम खुदावंद से रिफाकत नहीं रखते, जब हमारे दिल उससे दूर हैं, जब हमारी सोचें उसकी सोचें नहीं हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन, हमारी हालत भी इफिसस की कलीसिया की तरह है कि हम खुदावंद खुदावंद तो पुकारते हैं, हम ये सफेद चोगे पहनकर इबादत तो करवाते हैं, हम अच्छे मसीही बनकर चर्चेस में इबादतें तो करते हैं, लेकिन हकीकत में हमारे दिल मसीहत से और मसीह के कलाम से दूर हैं। और भाई और मेरी बहन याद कर, और 5वीं आयत में क्या लिखा है कि बस ख्याल कर तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और दोस्तों यहां पर ये बात इंतहाई अहम है कि खुदावंद जो है वो इफिसस की कलीसिया को ये बयान कर रहे हैं कि तौबा कर, और उससे पहले कि ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। और फिर उसके बाद जो है वो सलाह और मशवरे का सिलसिला शुरू होता है कि खुदावंद वो मशवरा, वो सलाह इफिसस की कलीसिया को देते हैं कि तू अब गौर कर कि पहली तेरी हालत कैसी थी, तू किस हालत से गिरा है। और खुदावंद के कलाम को अगर देखें तो यिर्मयाह नबी का सहीफा उसके 8वें बाब की 4थी आयत, और खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि क्या खुदा फरमाता है, क्या लोग गिरकर फिर नहीं उठते। और गौरतलब बात क्या है कि खुदा क्या कहता है कि क्या लोग गिरकर फिर नहीं उठते, क्या कोई बरगश्ता होकर वापस नहीं आता। यह सवाल है खुदा का। और खुदा आज इफिसस की कलीसिया के साथ साथ आज हमें भी ये बात कहता है कि क्या हमें भी ये सोचने की जरूरत नहीं कि हमने भी वो पहली सी मोहब्बत अगर छोड़ दी तो हम कहाँ थे और कहाँ से गिरे हैं। और मेरे भाई मेरी बहन, यहाँ पर हमें खुदा का कलाम ये बात बयान करता है कि बस ख्याल कर तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और आज हमें रिपेंट करने की जरूरत है, आज हमें तौबा करने की जरूरत है, आज हमें अपने गुनाहों से आजाद होने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम अपने गुनाहों से आजाद नहीं होते, जब तक हम तौबा नहीं करते, निजात तो हम हासिल कर लेते, लेकिन फतहमंदी उस वक्त हासिल होती है कि जब हम अपनी सब्र और कुव्वत को अपने अंदर कायम रखते हुए, अपने खुदावंद से मोहब्बत रखते हुए बढ़ते चले जाते हैं और इब्लीस का मर्दानावार मुकाबला करते हैं। और मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को गौर कीजिए, क्योंकि खुदावंद के कलाम में हम ये बात देखते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें ये बात बयान करता है कि जिस तरह से खुदावंद की आवाज है, खुदावंद का कलाम है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और मेरे भाई, और इस बात को जरा गौर कीजिए इस बात पर कि जिस वक्त खुदावंद के लोग उससे, उस मोहब्बत से गिर जाते हैं तो खुदावंद उनसे शिकायत भी करता है, खुदावंद उनसे गिला भी करता है कि तू अपनी पहली सी मोहब्बत जो है वो तूने छोड़ दी। और तब खुदावंद उनको सलाह देता है कि तौबा करो और ईमान लाओ, फिरो अपने बुरी रविशों से, फिरो अपने गुनाहों से। और फिर 6ठी आयत में, अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नकीलियों के कामों से नफरत रखता है जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। और फिर खुदावंद उनकी तारीफ करता है कि तुम नकीलियों के काम से क्या करते हो,
अदावत रखते हो, उनसे नफरत करते हो। और नकीली एक ऐसा फिरका था जो कि अमाल की किताब के 5वें बाब को अगर देखें तो वहां पर निकोलस या निकोलाउस जो है वो उसका बानी था। और इन लोगों की तालीम क्या थी? ये एक बिदती फिरका। और इन लोगों की तालीम क्या थी कि ये बुतों की कुर्बानी के गोश्त को खाना बुरा नहीं गर्दानते थे, ये हराम कारी करना बुरा नहीं समझते थे, ये बदअखलाकी करना बुरा नहीं समझते थे। और इस वजह से खुदा को निकेलियों के काम से नफरत थी। और खुदा कहता है खुदावंद यीशु मसीह के थ्रू कि हाँ, इस अलबत्ता तुम नकेलियों के काम से नफरत रखते हो, वो मैं भी रखता हूं। और आज हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि नकेलियों और नकेली जब हम देखते हैं तो ये दो अल्फाज का मुरक्कब है, नकेलियों। और पहला क्या है? निकाओ। और निकाओ का मतलब क्या है? कि फतह। और दूसरा लफ्ज है लाउस। और लाउस का मतलब क्या है? कि लोग। और ऐसे लोग, और जिसका मतलब फतह करना, और ऐसे लोग जो कि अवाम के फाते हों, जो अवाम पर हुकूमत करते हों। और दोस्तों, तारीख इस बात की शहादत बयान करती है कि खुदा का कलाम ये बात, जिस तरह से नकेलियों का जिक्र यहां पर किया गया, तो नकेली क्या थे? इनका ताल्लुक उन्हें झूठे नबियों के साथ, उन्हें झूठे रसूलों के साथ था, जो अपने आप को कलीसिया में बुलंद मर्तबत पर फाइज करना चाहते थे। वो लोगों पर हुकूमत करने को तरजीह देते और हुकूमत करना उनका शिवा था। लेकिन खुदावन का कलाम कहता है कि खुदावन को उनके कामों से नफरत है। और आज भी ऐसे कई नकेली जो हैं वो आज मसीही आलमगीर कलीसिया में मौजूद हैं, बड़े बड़े मर्तबों पर फाइज होकर, जो अपने आप को कलीसिया का खुदा समझते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन खुदा ने हमें चूंकि अपने बेटे यीशु मसीह के लहू से खरीदा है, इसलिए हमें उन झूठे रसूलों के सामने अब घुटने टेकने की जरूरत नहीं, बल्कि उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है। उनके झूठे कामों को जिस तरह से इफसस ने रद्द किया, आज हमें भी उनके झूठे कामों पर जो है वो शोर और वावेला करने की जरूरत है। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी के दरख्त से वही हासिल करेगा जो गालिब आएगा, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। और दोस्तों, यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है कि यहां पर 7वीं आयत में, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। और ये आखिरी आयत जो यहां पर हम खुदा उनके कलाम में से देखते हैं, तो मेरे दोस्तों, यहां पर इस बात को याद रखिए कि इफसस की कलीसिया को आखिर में खुदा क्या फरमाते हैं कि जिसके कान हो वो सुने। और कान तो हम सबों के हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि ये कान आज हमने बंद कर रखे हैं। ये कान उन झूठे रसूलों की तालीमात के वजह से आज बंद हैं। ये कान आज रुपए पैसे की खनक से बंद है। ये आंखें जो आज जिनसे हम देखते हुए भी नहीं देखते, ये कान जिनसे हम सुनते हुए भी नहीं सुनते, ये आज लालच के उस अंधेपन और बहरेपन से भरी पड़ी हैं कि जिसके बाद हमें कुछ और दिखाई नहीं देता। चंद रुपए, सिक्कों की खनक और आला मर्तबत, सिर्फ यही आज हमारी जिंदगी का नस्बुलैन बन गया है। मेरे भाई, मेरी बहन, यहां पर गौरतलब बात क्या है कि जो गालिब आए, मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से दूंगा और फल खाने को दूंगा। और जो गालिब आने की जो बात की गई, याद रखिए कि हम फजल से निजात तो हासिल करते हैं, लेकिन वो रूहानी जंग जो हमें दरपेश है, वो रोज बरोज चलती रहने वाली जंग है। और उस जंग में फाते कौन होता है? जो खुदा के रूह की आवाज को सुनता है, जो उस पर अमल पैरा होता है, जो खुदावन की मोहब्बत में कायम रहता है, जो आखिर तक सब्र और इत्मीनान के साथ उस जंग में साबित कदम रहकर जंग करता है, वही गालिब आता है। और मेरे भाई, मेरी बहन, जो गालिब आएंगे वो इनाम पाएंगे, और जिंदगी के दरख्त का फल उनका इनाम होगा। और जिंदगी के दरख्त के फल को देखें तो पैदाइश की किताब के 2 बाब की 9वीं आयत में हमें उसका जिक्र मिलता है कि वो दरख्त जो पहले बागे अदन में था, लेकिन पहले आदम ने जब
हुक्म अदूली की तो खुदावन ने उसको उस बाग से निकाला। लेकिन खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि आज पिछले यानी दूसरे आदम की वसातत से हमारी रूहें जो हैं वो आज हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहती हैं। आज हमारी रूहें जो हैं वो हमेशा की जिंदगी के फल में से खाने को तैयार हैं। और ये सारा इस्तेकाक उस दूसरे आदम यानी यीशु मसीह की ज़ात मुबारका को है। और दोस्तों आज याद रखिए कि फिरदौस में मौजूद वो दरख्त जो पहले उस बागे अदन में था, फिर हम उसकी बाइबली बुनियादें कहां पर देखते हैं कि फिरदौस में, और फिर जो अगर हम खुदा के कलाम को देखें और मुकाशफा की किताब के 22वें बाब में देखें तो वहां पर वो जिंदगी के दरख्त का जिंदगी का जो दरख्त है वो हमें नए यरूशलेम में भी दिखाई देता है। और मेरे भाई मेरी बहन इस बात को गौर कीजिए, जो एक अलामत नहीं है फिरदौस, बल्कि ये एक हकीकी जगह है। और जब हम फिरदौस की बात करते हैं तो नए अहदनामे में 3 दफा इसके हवाले से जिक्र किया गया है कि वो उस जिंदगी के दरख्त की बारे में जिक्र मिलता है हमें जो कि फिरदौस में मौजूद है। और जो गालिब आएगा उसको उस दरख्त का फल यानी हमेशा की जिंदगी इनाम के तौर पर दी जाएगी। और हर गालिब आने वाले फर्द को उस जिंदगी के दरख्त में से फल खाने का हक हासिल होगा जो खुदा के फिरदौस में है। और इस वादे की पुरफजल तर्ज ऐसे तौर पर तश्कील दी गई जिससे मसीह की पहली मोहब्बत बहाल होती है और दोबारा जाग उठती है। और आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम ये देख चुके कि इस कलीसिया को मुख्तलिफ तौर पर खुदावन ने किस तरीके से ये समझाया कि तुम्हारे अच्छे काम जो तुमने किए उसकी मैं तारीफ करता हूं, लेकिन जो तुम्हारे बुरे काम हैं उसके लिए मैं तुम्हें तंबीह भी करता हूं। और दोस्तों आज हमें भी ये सोचने की जरूरत है कि क्या आज हमने खुदा के रूह की आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को खोला है या नहीं। आज हमें भी ये सुनने और सोचने और गौर करने की ज़रूरत है कि क्या आज हमने भी खुदा के कलाम को सुनकर उसकी मोहब्बत को अपने अंदर बढ़ने दिया है कि नहीं। क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों क्या है, दायमी है, मगर अफजल इनमें क्या है भाई, मोहब्बत है। और खुदावन यही शिकायत कर रहे हैं कि मुझे तुझसे यही शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। तो आइए आज हमारे लिए ये वक्त है कि आज हम खुदावन से तोड़ी हुई उस मोहब्बत को फिर से बहाल करें। आइए आज हमारे लिए मौका है कि आज फिर से हम खुदावन के कदमों में आएं। आज फिर से हम खुदावन को आप उस रिफाकत को मजबूत करें, फिर से खुदावन को वक्त देना शुरू करें और फिर से खुदावन की उस अजली और अब्दी दुल्हन यानी कलीसिया का हिस्सा बन जाएं, ताकि खुदावन का रहम और उसका फजल हमारी ज़िंदगियों में फिर से बहाल हो। खुदावन आपको कलाम के इस हिस्से को सुनने और इस पर गौर करने का अजर अता फरमाए। खुदावन आपको बरकत दे। आमीन।